Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, today we go about the procedures and macros. I'm not with energy, but I'm making it for you guys so that you may not miss the classes. Um, the procedures are like macros, but macros are a little different and procedures are a little different. In a macro, if we we have already seen the macros, we have wrote the macros, for example, printing the strings. Okay, we will print, then we use macro keyword, and then we have some argument. If you want to pass, then write whatever you want to write and then say end macro. Now this is like an inline function, because if you have a code, for example, you have a long code and you are calling this print function say 10 times or 20 times or 100 times, wherever you call this print function, this whole code will be copied here. Okay, it will be all copied here. So that's why it's an inline. This makes it faster to execute, but it becomes your program, becomes bigger the more you have the calls to them, because it expands, because it copies all the code wherever it is called, as if you have, it's like a fill in the blank. So you call the print, this whole code of the print macro will be pasted here as if you have written it there only. But using the procedures is a little different. But one important thing is you can pass things to the macros, which you cannot I'm saying do in the procedures. In procedures you cannot pass things, but in a procedure you write with the proc and you have a name to the procedure. For example, there is a fact named procedure, we call it a fact procedure, and then you say fact and p, like and macro here and procedure. Before that you have to write a return, because you want to return back to wherever you have come from, and here you write the code. Now for example, you have a code and you have this fact written some 10 times or 20 times or 100 times, but you use the call keyword to call this function or procedure. Now here, this whole line of code, say this is 100 line of code. If this was macro, this 100 line of code will be pasted here, and then there was another call fact pasted there. But in case of your procedure, it's not pasted, rather there will be a jump. So after this line of code, IP will be pointing to it, and this IP will be stored on a stack. Say this is line number 200, that will be stored in IP. Now when this factor return comes up, this return actually pops this address to get us know कि हम कहाँ से आए हैं, तो वहां पे ले जाएगा. फिर जितनी भी लाइंस ऑफ कोड होंगी वो होंगी. उसके बाद जो ही कॉल आ गई, it will jump to that. That's called as a context switch. It is a context switch. ठीक है ना. तो context switch होता है जिसमें आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंटर वगैरह सारा, क्योंकि अगर जैसे लेटेस्ट मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, वहाँ पे आपके बहुत सारी चीज़ें जैसे थ्रेड्स हैं, स्केड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, वो सारी की सारी जो है सेव होती है. यहाँ पे फिलहाल इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मुझे अब करनी है वो सेव होगी, बिकॉज मुझे वापस भी तो आना है ना इसके ऊपर, जहाँ मैंने कॉल मारी थी उसके बाद कोड करना है मुझे, and so on and so forth. Whenever the call comes up to this factorial program, for example, it will not be, this code will not be copied here, so this will not be in line like your macros. Rather, there will be a jump, a context switch. IP will be copied on the, this time, say for example here it is 500. Now 500 is copied on this. When this factorial program finishes, how we say return, it pops, this return actually pops this 500 to know the address of the next instruction to be executed. After that आपने कोड बहुत सारा लिखा है, वो सारा हो जाएगा, फिर से कॉल होगी, फिर से जंप हो जाएगा, और इसके बाद वाला जो कोड होगा वो यहाँ पे स्टैक के अंदर स्टोर होगा. ठीक है ना. So it's all the time jumping and coming back. So this makes it a little slower than macros. लेकिन अगर बहुत बड़ा आपका प्रोसीजर कोड है, उसमें बेटर हमारा रहता है प्रोसीजर ही लिखना, क्योंकि वरना वो सारा का, मान लीजिए आपके पास 100 बार कॉल है, तो जो मैक्रो है वो 100 बार वहां चिपकेगा, सो वो बहुत बड़ा हो जाएगा. लेकिन आपका जो प्रोसीजर है वो छोटा ही रहेगा, क्योंकि वो जंप मारेगा उसी कोड पे, तो कोड एक ही होगा आपको इन प्रोसीजर, लेकिन इन मैक्रो दैट विल बी इन लाइन, दैट विल बी पेस्टेड एवरी टाइम यू मेक ए कॉल. ठीक है जी.
सो अपने अपने फायदे दोनों हैं। जो आपका मैक्रो है वो भी फंक्शन की तरह काम करता है, ये भी फंक्शन की तरह काम करता है, लेकिन अपने अपने लिमिटेशंस हैं। जो प्योर हमारी हाई लेवल फंक्शंस हैं उसमें उसमें बहुत ज़्यादा फायदे हैं, यहाँ पे उतने फायदे नहीं है, जैसे कि आप प्रोसीजर को पास ही नहीं कर सकते। अब दूसरी बात इसमें ये होती है कि जो प्रोसीजर है वो दो किस्म के होते हैं। जो प्रोसीजर है वो दो किस्म के होते हैं, एक यानी कि जिसे हम नियर बोलते हैं, और एक दूसरा जो कि फर होता है। नियर मीन्स दैट जो कोड सेगमेंट आपका है, जहाँ पे आपका कोड है वहीं पे आपने कहीं एक प्रोसीजर बनाया है। लेकिन अगर आप प्रोसीजर कहीं और बनाते हो तो उसे हम फर कहते हैं। जैसे कि आपका प्रोसीजर इस सेगमेंट के अंदर जो कि ये वाला कोड सेगमेंट नहीं है, कुछ और सेगमेंट है उसमें है, तो इसे हम फर बोलते हैं। इस इस सूरत में हमारे स्टैक के अंदर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के साथ साथ किस कोड सेगमेंट से हम आए थे वो भी, उस सेगमेंट का एड्रेस भी स्टोर करना पड़ेगा। ये फर्क रहेगी हमें, ठीक है ना। ओके, सो अगर हम ये देखेंगे अब, सो प्रोसीजर्स होते हैं जो लार्ज ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसमें हम रखते हैं, इसमें छोटे से कोड रखते हैं। ये प्रोसीजर नहीं है, ये यहाँ पे मैक्रो है, सॉरी। ऑब्जेक्ट कोड इसमें एक ही बार होगा, इसमें इनलाइन है, बार बार वो वहाँ पे पेस्ट होगा और उसके ऊपर काम होगा। यहाँ पे कॉल एंड रिटर्न, ये भी एक अहम चीज़ है कि जब आप प्रोसीजर करते हैं तो उसको मैंने आपसे कहा कि आप कॉल से उसको कॉल करते हैं और रिटर्न से आप वापस जाते हैं, जो ये दो चीज़ें आपके मैक्रो में नहीं होते हैं। मैक्रो को सीधे नाम से हम पुकारते हैं ना। इसमें लेंथ फाइल की कम होगी लेकिन इसमें बड़ी होगी क्योंकि आपको पेस्ट हो रहा है, इनलाइन हो रहा है। और प्रॉक और एंड पी इससे यहाँ पे होता है, प्रॉक से शुरू और एंड पी से खत्म, और यहाँ मैक्रो और एंड मैक्रो से खत्म, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज कॉन्टेक्स्ट स्विच है, जंपिंग हो रही है, यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे इनलाइन है, तो एग्जीक्यूशन टाइम विल बी फास्टर। सो लाइक दिस, यू हैव अ प्रोसीजर नेम, देन यू से proc, and then you have procedure name, the same procedure name, and you say end p. Same here, macro name, और फिर यहाँ पे आर्गुमेंट भी हो सकते हैं, जितने चाहे आप उतना दे सकते हैं। आप आर्गुमेंट्स एक ही नहीं है बल्कि और भी दे सकते हैं, ठीक है जी। और ये थोड़ी सी एग्जांपल दी गई यहाँ पे, जैसे एडिशन एक हमारे पास एक प्रोसीजर है, एंड यू कॉल proc एंड यू हैव पुट इट हियर एंड नियर। अगर आप नियर नहीं लिखेंगे तब ये नियर ही होगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि अगर आप एक ही सेगमेंट में लिख रहे हैं। लेकिन अगर फर है तो फिर वो लिखना पड़ेगा, और उसी जो एडिशन का जो प्रॉक है वो उसी से हम खत्म करते हैं। लेकिन इससे पहले हम खत्म करेंगे, यहाँ पे रिटर्न लिखना जरूरी है, ठीक है ना। वी हैव टू राइट हियर रिटर्न टू गेट बैक टू वेयर फ्रॉम वी हैव कम। और ये वाला जो है इसमें सिंपली मैक्रो, और फिर यहाँ पे एक मैसेज हमने आर्गुमेंट रखा है जो भी होगा आपके पास, और लास्ट में एंड मैक्रो। मैंने एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है, यानी कि जो हमने स्ट्रिंग्स प्रिंट की थी उसी हिसाब से मैंने एक कोड लिखा हुआ है छोटा सा, ताकि आपको समझ आए कि जो हम स्ट्रिंग्स प्रिंट करा रहे थे वो चीज़ें। यानी कि इसमें हमने क्या किया काम, देखो ये मैं लिख चुका हूँ ऑलरेडी। मैंने कुछ स्ट्रिंग्स बनाई हुई है, मैसेज 1 2 3 4, और कोड में देखिए मैंने एक अब मेन प्रोसीजर इम्प्लीमेंट कर दिया यहाँ पे। हालांकि हम प्रोसीजर कर सकते हैं ऐसे भी, लेकिन मेन प्रोसीजर से क्या रहता है कि कंट्रोल रहता है, बिकॉज मेन प्रोसीजर इज लाइक ए मेन इन योर सी। वहां से हम कंट्रोल लेंगे किसी और प्रोसीजर से, वापस आएंगे यहाँ पे, तो इससे हमारा एक कंट्रोल मैकेनिज्म रहेगा। तो ये भी एक प्रोसीजर है। तो मेन प्रोसीजर में मैंने क्या किया, मैंने प्रॉक लिखा, दैट इज द प्रोसीजर, और उसका नाम रखा मेन, ओके, और उसको एंड पी यहाँ पे कर दिया। हालांकि मुझे यहाँ पे रिटर्न करना चाहिए, अगर आपके पास मेन प्रोसीजर अकेला है तो रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद तो खत्म होगा ही। लेकिन अगर इसके बाद आपने एक और प्रोसीजर या कुछ और प्रोसीजर्स लिखे हैं, अगर आपने यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखा तो वो फिर से एग्जीक्यूट होंगे। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, इसमें थोड़ा सा एरर आ जाएगा। एरर नहीं आएगा बिकॉज इसमें ये हो जाएगा कि एक बार फिर से प्रिंट होगा लास्ट में। आई विल शो इट बिकॉज आई हैव मिस्ड द रिटर्न हियर। तो अगर हम मुझे एक प्रोसीजर लिखना है तो उसका नाम यहाँ पे लिखूंगा, और कीवर्ड प्रॉक है, और यहाँ आप नियर लिख सकते हैं या फर लिख सकते हैं, और फिलहाल तो ये नियर है क्योंकि एक ही कोड सेगमेंट के अंदर है, तो बाय डिफॉल्ट नियर ही है, लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप जो उसमें लिखना चाहते हो, फिलहाल मैं सिंपली मूव H09H कर रहा हूँ, इंटरप्ट 21H। हालांकि ये जो वाला जो कोड है, जो प्रिंट स्ट्रिंग वाला कोड है, वो बेटर रहेगा मैक्रो से ही, लेकिन अब मैं दिखाने के लिए, जस्ट सिखाने के लिए वही कर रहा हूँ जो आपने किया हुआ है यूजिंग द प्रॉक।
ठीक है, फिर हम आगे बहुत सारे प्रोग्राम्स करेंगे जिसमें हम अपने प्रोसीजर्स बनाएंगे। और जो ही आपका प्रोसीजर खत्म होता है तो यू यूज द कीवर्ड रेट। रेट मींस रिटर्न। रिटर्न वायर इट विल पॉप द आईपी एड्रेस कि जहां से इसको कॉल मारी थी, तो वहीं उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे ही जाएगा। और ये डायरेक्टिव है कि जो ये प्रिंट है ये खत्म हो गया। अगर आप यहाँ नहीं लिखेंगे ये प्रिंट फिर से तो वो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या ये वाला प्रिंट जो है प्रॉक के बाद भी लिख सकते हैं, सो आप वो भी कर सकते हैं, यू कैन प्ले विद दिस, राइट। अब हम डॉट कोड में क्या कर रहे हैं, मैं मेन प्रोसीजर लिख रहा हूँ, उसके बाद मैंने बॉयलर प्लेट कोड लिखा हुआ है यहाँ पे। तो एक और बात जो हमने कही कि जो प्रोसीजर है उसको हम कुछ पास नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर हम पास ही नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा आएगा उसका। हम उसको इनडायरेक्टली पास कर सकते हैं, यानी कि एक प्रोसीजर है मेरा, मान लीजिए ये प्रोसीजर एक मेरा है, ठीक है, I have this procedure here and I want to pass something to it. I cannot pass it directly because it doesn't have an argument list here. So how can I do that? So उसके लिए मैं कोई रजिस्टर में चीज डालूंगा, वो रजिस्टर यहाँ पे एक्सेस करूंगा, ठीक है, तो हो गया वो भी पास। या मैं स्टैक के अंदर डालूंगा कोई चीज और उस स्टैक में इसके अंदर एक्सेस करूंगा, वैसे भी हम इसको पास कर सकते हैं। या सीधे ही मेमोरी के अंदर मैं कोई चीज इसमें एक्सेस कर सकता हूँ, सो वो भी हो गया पास करना, क्योंकि मेमोरी में डाल रहा हूँ बाहर से और मेमोरी यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ, वो भी तो हो गया पास होना। सो डायरेक्ट पास नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली यूजिंग द रजिस्टर्स और स्टैक और द मेमोरी वी कैन डू दैट। ठीक है जी, जैसे मैंने इसको यहाँ पे मुझे पास करना था, जैसे मैंने मैक्रोज को पास क्या किया, MSG1 में मैक्रोज को पास करता था, MSG2 पास करता था, यहाँ पे मैं वो चीज DX में इफेक्टिव एड्रेस MSG का डाल रहा हूँ, ठीक है, और DX मुझे खुद ब खुद यहाँ पे एक्सेस हो जाएगी, बिकॉज मूव AH जब 09H करेंगे तो इंटरप्ट 21H विल वर्क ऑन द DX, तो DX में जो है वो प्रिंट हो जाएगा ना, उसका जिसका भी एड्रेस होगा। सो आई कुड, दैट मीन्स इनडायरेक्टली पासिंग दिस टू प्रोसीजर, इवन दो आई डिडंट पास इट डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली पास हो गया क्योंकि वो उसने एक्सेस किया वो DX को, ठीक है ना। क्योंकि जो हमारी नॉर्मल फंक्शंस होती हैं अगर हम उसको पास नहीं करेंगे तो कोई वेरिएबल जो बाहर से होता है जैसे सी में, वो वहां पे एक्सेस नहीं होगा, इसलिए हमें पास करना होगा वहां पे, ठीक है ना। वरना हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं इन आवर सी और C++, ठीक है ना, तब जाके वो एक्सेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेरे रजिस्टर्स हैं, मेमोरी है, वो सारी ग्लोबल ही है, तो यू एवरी प्रोसीजर कैन एक्सेस इट, सो नो नीड टू पास एनीथिंग टू द प्रोसीजर, वी कैन एक्सेस देम व्हेनेवर वी वांट देम। सो यहाँ पे क्या होगा, जो मेरा यहाँ पर क्या होगा, जो मैसेज 1 है वो DX में जाएगा, और जो कॉल प्रिंट हो गया, जो ही कॉल प्रिंट हो गया, इट विल जंप टू द लाइन नंबर, वन सेकेंड, इट विल जंप टू द लाइन नंबर 23, ठीक है ना। जो ही कॉल प्रिंट हो गया फ्रॉम 13 फॉर एग्जाम्पल हियर, इट विल जंप टू द लाइन नंबर 23। कैसे, ये क्या काम करेगा, क्योंकि आपको कॉल आ गई। और जो लाइन नंबर 14 है, ठीक है ना, जो लाइन नंबर 14 है, that will be saved in the stack. So instruction pointer, because instruction pointer is pointing to line number 14, जो ही कॉल प्रिंट हो गया, instruction pointer is pointing to the next instruction. So प्रिंट करने के बाद ये तो जंप मारेगा यहाँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है लाइन नंबर 14 सेव होगा, एंड सो ऑन। नाउ when this return, ये सारा कोड अपना करेगा, उसके बाद रिटर्न जब हिट होगा, that will pop this 14, ये पॉप करेगा और 14 पे कंट्रोल वापस जाएगा, सो इट रिमेंबर्स कि मुझे वापस कहाँ जाना है। उसके बाद फिर से प्रिंट हो रहा है, तो IP will be here now to line number 15, so 15 will be saved here and it jumps from here to here in this code, does all this code, जो ही ये रिटर्न हिट होगा, इट विल पॉप द एड्रेस एंड इट नोज एग्जैक्टली कि मुझे कौन सी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन करनी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन यहाँ पे मैंने चूंकि यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखा, सो इट विल नॉट रिटर्न टू ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज मेन को कौन कॉल करता है, मेन को ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है, इट हैज टू गो बैक टू ऑपरेटिंग सिस्टम, बट इट विल डू व्हाट, इट विल एंड दिस प्रोसीजर इफ आई डोंट राइट हियर रिटर्न, then it will again do this. So last time में DX में मैसेज 4 होगी और मैसेज 4 फिर से एक बार प्रिंट हो जाएगी, आप वो देखें। So if I give it a go, now run it, now you see I got it now, all the messages are given, learning procedures, I love procedure 1 2 3 4, but I got it now still comes up here. Why? Because आपने जो मेन प्रोग्राम है यहाँ पे उसका रिटर्न नहीं किया, so it will not return or end the program,
right? It will still go on line number 21, 22, 23, and so on up to exit. So for that, if you see now you give it a go. Now it is saying I got it now. So it jumps from that to that location. If you do it, stepwise, if you do it stepwise, single step, once again, I emulate it again. And if you give it a single steps, so you see it is load dx msg1 single step call print. After print, it is jumping to the line number 24, right? And then do single steps and you will see, and you'll check in the meantime what is in the instruction pointer and what is the address, and you can see what is stack pointer doing, okay, and all those things you can check yourself. It wrote this, and then it come back, it hit the return, it will come back to line number 14 because it knows I was there. Why? Because stack mein tha, and so on. And call print, jump it here, do all these things, print next, come back to line number 16, as you could see, right? So this is how it works. So you can play with it and see, understand the registers, what are the registers doing and all. Just work on it. ठीक है जी? अभी मैं vomiting ने मेरा हालत खराब कर दी, but still I make a video for you guys so that you will not miss the exams and all. So hopefully you will work on it, you will grasp it, you will practice it, inshallah ta'ala, and you all will be good in the procedures. And there will be the difference between procedure macros. I hope you got it. Okay, so until next time, keep me in your prayers, in your precious supplications. So until next time, ma salama.